لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریاست کا جو ایک ٹوکا ہے، جو ریاست کا وزن ہے، وہ صرف شہباز گل کے اوپر گرا ہے. باقی تمام لوگ جو ہیں وہ سائیڈ پہ کھڑے مسکرا رہے ہیں اور بلکہ لمبے لمبے لیکچر دے رہے ہیں. خواجہ آصف جیسا 2 نمبر وزیر دفاع ہمیں اب لیکچر دے رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی فوج کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے. یہ وہی خواجہ آصف ہے جو کہتا تھا کہ پاکستان کی فوج نے ہماری بوٹیاں نوچ کے کھا لی. یہ اس کی لیکن آج وہی بیٹھا ہوا ہمیں لیکچر دے رہا ہے. اور جس طریقے سے پھر شہباز گل کو کے ساتھ یہ کیس بنایا گیا اور ایک پوری طریقے انصاف کو اینٹی فوج ثابت کرنے کی مہم ایک جو چلائی گئی، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، اس طرح کے باقی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے، اور پاکستان کے عوام کو پاکستان کی فوج کے مقابلے پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی اتنی کم ہے. پاکستان کو اس وقت صرف 2 ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی یکجہتی کی علامت ہے. ایک پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی وفاقی جو نوعیت ہے، پاکستان کا جو فیڈرلزم ہے اس کی ریپرزنٹیشن اگر کوئی کرتی ہے، پاکستان کی وفاقی نوعیت کی کوئی اس وقت ریپرزنٹیشن کرتی ہے تو وہ تحریک انصاف اور عمران خان کرتے ہیں. اور دوسرا ادارہ جو پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے وہ پاک فوج ہے. اور ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا وہ بھی سیاسی مقاصد کے لیے وہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوگا. صرف نون لیگ کے فائدے میں، پی ڈی ایم کے فائدے میں، آصف زرداری کے فائدے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کا تو پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ان کو تو فکر ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو کیا نہیں ہو. آپ نے دیکھا حمزہ شہباز یہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے آ کے وزارت اعلیٰ کا قلمدان سنبھالا. اس کے بعد 24 ارب روپے کے مقدمے میں وہ یہاں پہ ملوث ہے. لیکن حمزہ شہباز جو ہی یہاں پہ ان کی وزارت اعلیٰ ختم ہوئی وہ اپنے آبائی گھر تشریف لے گئے، یعنی لندن. اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کا ایک پیٹرن ہے. جس طرح کبھی منگولوں نے حملے کیے تھے ہندوستان کے اوپر اور دنیا میں، وہ آتے تھے یہاں پہ حملے کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کا خاندان آتا ہے، حملے کرتا ہے پاکستان کے اوپر، لوٹ مار کرتا ہے، اور جو ہی یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں یہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ پیٹرن ہے جو پاکستان دیکھ رہا ہے اور اس پیٹرن کو توڑنے کی ضرورت ہے. اور اس کو توڑ اگر کوئی سکتا ہے تو وہ تحریک انصاف توڑ سکتی ہے. اور اب تحریک انصاف کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تو دیکھیں یہ تو پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں. یہ تو جناب کل تو وزیر دفاع نے حد ہی کر دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف وہ ہندوستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے. کوئی عقل والا آدمی جس میں ذرا سی بھی عقل ہو کیا وہ ایسی بات کرے گا؟ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے لوگ ہیں جن کو پاکستان کے مفاد کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں. جو سلوک کیا گیا شہباز گل کے ساتھ، جو ٹارچر کیا گیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. کوئی بھی شخص چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ٹارچر کی حمایت نہیں کر سکتا. اور اس کے اوپر اس وقت ایک عالمی رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ٹارچر کے خلاف، اور خصوصاً جو کسٹڈی میں ٹارچر ہے ان کے اوپر ایک عالمی رد عمل ہے. اور اس کے اوپر ہمیں شدید تشویش ہے. اب سے کچھ دیر کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کیس سنے گی تو مجھے امید ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹس دیکھے گی جو جیل کے ڈاکٹرز نے بنائیں، اور جیل کے ڈاکٹرز نے وہاں پر اس کو پیش کیا جانا چاہیے. ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے، اور وہ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر شہباز گل صاحب کو، ان کے خاندان کو بھی اور پی ٹی آئی کو کانفیڈنس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوشن کو بھی کانفیڈنس ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک صرف ہمارا نقطہ نظر سے میڈیکل بورڈ بننا چاہیے، انڈیپینڈنٹ بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر دونوں فریقین کو اعتماد ہو کہ یہ جو رپورٹ دیں گے وہ صحیح ہوگی. اور جس طریقے سے جعلی میڈیکل رپورٹس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمت ہے. انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنے، وہ دیکھے کہ شہباز گل کے اوپر تشدد کی خبریں جو ہیں وہ میڈیکلی کنفرم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اس کی رپورٹ کے بعد ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جو شہباز گل کے اوپر تشدد میں ملوث ہیں. اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو
DIG को इनको अदालत तलब करें, इनके ऊपर तफ्तीश शुरू की जाए और हमें बताया जाए कि कौन लोग थे जिनकी कस्टडी में जो शहबाज गिल था पहली रात को था और किन लोगों ने उसके ऊपर तशद्दुद किया। अगर ये तफ्तीश नहीं होती तो ये पाकिस्तान में हर शख्स वल्नरेबल है। किसी भी शख्स को उठा के ले जाना, उसके ऊपर तशद्दुद करना एक मामूल की बात बन जाएगी। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इस तफ्तीश को यहाँ पे छोड़ दें कि आगे चलें जी, अब तो उसके ऊपर जो है वो आ गया है कि उसे सांस की बीमारी है। आधी रात को इस जो जेल कवानीन हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। जेल कवानीन ये हैं कि 5 बजे के बाद मुजरमान की ट्रांसफ़र नहीं होती। रात को इस्लामाबाद पुलिस आधी रात को वहाँ पे पहुँची, रेंजर्स को वहाँ पे बुलाया गया, एक पूरा स्टैंड ऑफ क्रिएट किया गया। शहबाज गिल को ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के स्ट्रेचर के ऊपर डाल के जिस तरीके से पुलिस लेके गई उसकी वीडियोस अब मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसको जो है उसकी हालत क्या थी, क्योंकि उनको जो प्रॉब्लम है वो दमे की प्रॉब्लम है। और जब भी आप इस तरह की एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे, जब भी एक इस तरह के हालात में रखेंगे तो आपका जिन लोगों को अल्लाह तमाम लोगों को सेहत दे, पर जिन लोगों को दमा है वो इमेजिन कर सकते हैं कि ये एस्थमा जो है वो एग्रीवेट कर जाता है। और वही शहबाज के साथ हुआ, उसका सांस जो है वो लेने में तकलीफ़। और अभी फिर मेडिकल जो अभी आया है हमारा यहाँ पे पिम्स ने, जो इस्लामाबाद का हॉस्पिटल है, उसने भी ये बात उसकी तस्दीक कर दी है कि उनकी जो रेस्पिरेटरी है, उनका जो सांस लेना है वो इस वक्त दुश्वार है, उसको ऑब्जर्वेशन में जो है वो रखा जाए। लेकिन जिस तरीके से रात को उनको एक ज़बरदस्ती लाया गया वो एक और वायलेशन है कानून की। और फिर हम देख रहे हैं कि जो जेल है वो पंजाब हुकूमत के तहत है, लेकिन वहाँ पर मुलाकातें शहबाज गिल से नहीं करने दी गई। तो उनको किसने रोका? मुलाकातों में कौन गया था? उमर अयूब जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उसके बाद अली अवान जो MNA हैं, उसके बाद जो हमारी डॉक्टर मलिका बुखारी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ की चेयरमैन थी, उसके बाद हमारे दीगर MNA राजा खुरम और बाकी लोग सारे जो वहाँ पे गए उनको रोक दिया गया। उनके लॉयर्स को मिलने नहीं दिया गया कल से। आज सुबह आज एप्लीकेशन डालनी पड़ी है कि उनके लॉयर्स को तो उनसे मिलने दें, उनकी फैमिली को उनसे मिलने दें। एक बंदा बीमार है, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि वो मौत व हयात की कशमकश में है, तो उसकी फैमिली को तो उससे मिलने दें, उसके लॉयर्स को तो उससे मिलने दें। लेकिन वो हम देख रहे हैं कि वो नहीं हो रहा। इसके साथ साथ फिर रात को एक और वाक़या हुआ है जो मैं मीडिया के तवस्सुत से सामने भी लाना चाहता हूँ। आधी रात को जब मुराद सईद जो हैं वो थे शहबाज गिल के पास मौजूद थे, उनके घर के बाहर मशीन गन लेके लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल के ऊपर आए। इत्तफाक से उस वक़्त जो उनके एक दोस्त जो थे फैसल अमीन वो करीब थे, उन्होंने उनको फ़ोन किया। फैसल जो है उन्होंने उनके घर पे पहुँचे और वो मोटरसाइकिल वाले वहाँ से फ़रार हुए मशीन गन के साथ। और वो कहाँ दाखिल हुए? वो रेड जोन में दाखिल हुए। किसी पुलिस चौकी में उनको नहीं रोका गया। वो सदर हाउस, वज़ीर आज़म हाउस से गुज़रते हुए अपनी गन्स के साथ जो है वो वहाँ पे गायब हुए। अब मैं ये समझता हूँ उसकी पुलिस में रिपोर्ट जो है वो मुराद ने कर रहे हैं और फौरी तौर के ऊपर एक जो कैमरा है उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए सामने और पता लगना चाहिए कि ये लोग जो मुराद के घर पे रात को 2 बजे पहुँचे, ये कौन लोग थे, उनका इरादा क्या था। और इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में हम समझते हैं कि इस तरह की जो वाक़यात हैं उनकी शदीद हम जो है वो मज़म्मत करते हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि तहरीक इंसाफ का अगला लाएमल क्या होगा, हमारा अगला लाएमल बिल्कुल वाज़ेह है। 17 तारीख को जो पंजाब में इलेक्शंस हुए थे, कोई भी और हुकूमत होती इखलाकी तौर के ऊपर उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। 75% नशिस्तें इन ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने जीती थी। 75% नशिस्तें जीतने के बाद ज़ाहिर है कि हमारा ये एक मुतालबा जायज़ था इखलाकी तौर के ऊपर कि पीपल ऑफ पंजाब हैव स्पोकन। पाकिस्तान के लोगों ने अपना फ़ैसला दे दिया है, पंजाब के लोगों ने अपना फ़ैसला दे दिया और उसके बाद हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक ऐसा ढीठ जो तबका है वो पाकिस्तान में कुर्सी से चिमट गया है कि जिसने फ़ैसला कर लिया है कि वो हर सूरत चिमटा ही रहेगा, वो उतरेगा नहीं। और
ان کو اتارنے کے لیے ہم اب ایک ملک گیر تحریک میں داخل ہو چکے ہیں۔ کراچی کا جو جلسہ ہے وہ جلسہ اسی ملک گیر تحریک کا حصہ ہے۔ یہ جو تحریک ہے یہ 10 سپتمبر تک جاری رہے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 10 سپتمبر تک اس حکومت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اگر 10 سپتمبر تک استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر ظاہر ہے بات جلسوں سے آگے جائے گی، اور ہم نے ہر صورت اس حکومت سے الیکشن کروانا جو ہے یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے۔ یہ کہنا کہ اس لیے آپ الیکشن نہ کرائیں کہ عمران خان الیکشن جیت جائے گا، پھر آپ ملک میں کوئی اور نظام بنا لیں، آپ مارشل لا لگا لیں، آپ نارتھ کوریا کی طرح کوئی نظام لگا لیں، لیکن آپ کو الیکشن کروانے پڑنے ہیں اگر آپ جمہوریت رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ہم نے جو میڈیا فریڈم ڈے منایا ہے اس کے تناظر میں جو آج ہم سیمینار بھی کر رہے ہیں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے، جو میڈیا کلیمپ ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کلیمپ ڈاؤن جو ہے وہ نہیں ہوا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک موقف کے لوگوں کو بولنے کی اجازت ہے، دوسرے موقف پیش ہی نہیں کرنے دیا جا رہا، اور پھر ARY کو جس طرح سے بند کیا گیا، پھر جس طریقے سے باقی جو ہمارا ہے اسی طرح باقی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے اس کو ملک چھوڑنا پڑا، صابر شاکر جیسے شخص کو ملک چھوڑنا پڑا، موہت پیرزادہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں یا ملک چھوڑ دیں، اسی طریقے سے جو باقی سمیع ابراہیم ہیں ان کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا، یہ تمام کر رہے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ عدلیہ سے میری درخواست ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں ان کے اوپر غور کریں۔ اس کے کوئی جج جو ہے جو انسانی حقوق کا تحفظ نہ کر سکے، ظاہر ہے کہ یہ اس کی جاب ہی یہ ہے، اس کی نوکری ہی یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اور اگر ہماری عدالتیں انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کریں گی تو اور کون ادارہ جو ہے وہ کرے گا۔ لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تحریک انصاف کی جدوجہد جاری رہے گی، عمران خان کی جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی، اور یہ جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب تک عوام کو حکومت بنانے کا حق نہیں مل جاتا، حقیقی آزادی کی جو ہمارے منزل ہے وہ آ کے رہے گی۔ اچھا صاحب یہ بات کریں پھر آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری تفصیل تو فواد چودھری نے بیان کر دی، ایک دو چیزوں پہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 یہ کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو کل پھر اٹھایا گیا ہے، اور یہ مسلسل دباؤ کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اپوزیشن کو اٹھا کے، اور یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو مرضی یہ کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ظلم اتنا کریں گے جتنا برداشت کرنے کی طاقت ہو۔ زندگی بھر مراد علی شاہ اور ان کی کابینہ نے اور پیپلز پارٹی نے نہیں رہنا اقتدار میں، یہاں پہ بھی تبدیلی کے حالات شروع ہوئے، تو لہٰذا اتنا ہی ظلم کریں جتنا سہنے کی طاقت آپ رکھتے ہیں۔ آپ 2 دن بھی جیل برداشت نہیں کر پائیں گے جب یہاں سے کوئی اس طرح کی بات کی گئی، تو آپ کے اوپر بے انتہا مقدمات ہیں، چوری کے مقدمات ہیں، آپ کے اوپر نیب کے مقدمات ہیں، آپ کے اوپر چینی کی فیکٹریوں کے مقدمات ہیں، پاکستان کی شوگر مل آپ نے سستے میں بیچی اس کے مقدمات ہیں، ایک پیشی کی مار ہے، لیکن نہ جانے کیوں وہ پیشی نہیں ہوتی کسی صورت بھی، لیکن ہو جائے گی۔ تو لہٰذا میں شدید مذمت کرتا ہوں حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کی۔ میں مذمت کرتا ہوں جس طرح سے شہباز گل کو جیل میں زد و کوب کیا جا رہا ہے، جو ظلم و ستم اس کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ایسی کیا چیز ہے جو ایک طرف انصاف کے پورے نظام کا رخ موڑے ہوئے ہے۔ ہر وہ چیز جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو، ہر وہ چیز جو پاکستان تحریک انصاف کو نقصان دینے میں مددگار ثابت ہو، اس کی ایگزیکیوشن فوراً ہوتی ہے۔ اور میری سمجھ میں تو یہ بات آئی ہے کہ جو امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے یہ کیونکہ عوام میں جانے سے ڈرتی ہے، یہ عوام میں جا کے بن کباب اور برگر کھانے سے ڈرتے ہیں، ووٹ کیسے مانگیں گے؟ تو لہٰذا ان کے پاس اب ایک ہی آپشن ہے کہ یہ کیونکہ ایک ناجائز طریقے سے اقتدار میں گھسے ہیں، اس کو چپڑ کے بیٹھے رہیں، اور جتنی اسٹیٹ کی طاقت اور مشینری ہے وہ اس پہ لگا دیں کہ کسی طرح عمران خان کو اور ان کی جماعت کو کرش کر دیں۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ عمران خان آج پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی مقبول ترین لیڈر بنا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ آج قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان کو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو ہرانا تو دور کی بات ہے، یہ عمران خان کے
अशर अशीर भी नहीं है सियासी कार्ड में, इतने इतने लोग हैं, चाहे वो फजल रहमान हो, खुद जरदारी हो, नवाज शरीफ हो या उनके आवारी हों, क्योंकि ये सारे जो बैठे हैं इक़्तिदार में ये सारे उन्हीं के आवारी हैं जो एक दूसरे का पेट काट के पैसा निकालने आए थे, जो एक दूसरे का गला पकड़ के रोड पे घसीटना चाहते थे, और आज ही इमरान खान के खौफ से इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ज़्यादा दिन जारी नहीं रहेगा ये जुल्म। इमरान खान कराची से आगाज़ कर रहे हैं अपने सेकंड फेज़ का जद्दोजहद का, और ये फैसला कुन मार्का होगा जो 10 सितंबर, ख्वाद ने आपको बताया कि 10 सितंबर से पहले इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम इस जाली हुकूमत को लपेट देंगे। अच्छा, सवाल मेरा आपसे ये था कि इससे आपने इससे पहले भी आपकी तरफ से भी कई दफ़ा ये बयान आया है, शेख रशीद की तरफ से भी आया है कि ये हुकूमत इतने दिनों की चली, ये हुकूमत तो उस वक्त क्या लाहेमल होगा। और दूसरा ये कि ऐसा क्या है कि आप गवर्नमेंट में थे, अदालतों के पीछे छुप रही है या अदालतों का सामना नहीं कर रही, तो आज आप लोग भी तो उसी तरह से स्टे ले रहे हैं, जो FIA जिस तरह से तलब कर रही वहाँ आप लोग नहीं जा रहे, तो ऐसा क्या डर क्या है? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि जो हुकूमत जाने की तारीख थी हमने दी थी, तो उसके बाद पंजाब हुकूमत चली गई। पंजाब हुकूमत जो है वो भी अभी तक तकरीबन 80% जो हुकूमत है वो तो PTI की जो है वो हुकूमत है। इस हुकूमत है, इसके जाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कल चाहे सारा पूरा चारों उधर से KP है ब्लॉक कर लें, ये बेचारे तो कहीं सवाए फिर हेलीकॉप्टर भी आ जा सकेंगे। लेकिन मसला ये है, हम इलेक्शन चाहते हैं बग़ैर फसाद के। अगर फसाद करके आपने पाकिस्तान में पॉलिटिकल चेंज लानी है तो फिर उसके अपने रिपरकशंस हैं। हमारी मईशत जो है वो इतनी इन्होंने आके बेड़ा उसका गर्क कर दिया है कि अगर हम इस तरह के ड्रेस्टिक मेजर्स लें तो हमें मईशत को बचाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश ये है कि हुकूमत जमहूरी तौर के ऊपर ये बात रियलाइज़ करे और जाए। जहाँ तक आपकी बात है कि अपना हम अदालतों के स्टे में, अदालतों के अंदर नहीं, हमने ही तो फेस किया। अदालत में हम क्या जा रहे हैं? अदालत में हम जा रहे हैं कि जनाब आपने इनको हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन को कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग भी साथ डिसाइड करेंगे, वो उसकी तरफ आ ही नहीं रहे हैं। हमारे जो केस है उसकी तो फंडिंग का इशू आपने डिसाइड कर दिया, वो आपने गलत डिसाइड कर दिया, उसके खिलाफ अपील हो गई। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग के इश्यूज आप क्यों नहीं जो है वो रिजॉल्व कर रहे हैं? उसके लिए तो अदालत में जाएंगे ना, और क्या हम इलेक्शन कमिश्नर को जाके कोई मोबाइल का इशू बताया जा रहा है कि वो उनसे बरामद करनी है शहबाज के साथ, तो ऐसा क्या है मोबाइल में कि मोबाइल को छुपाया जा रहा है? उसके अलावा दूसरी बात ये कि ये कल सैंडविच बना रहा शहबाज गिल साहब ना सूबाई और वफा की हुकूमत के दरमियान, तो ये कब तक कौम देखेगी? और खासतौर पे जब जेल में कोई जाता है तो बीमार हो जाता है, वैसे नॉर्मल बाहर आता है तो ओके हो जाता है, तो ये कब तक होता रहेगा? ये देखें, ये तो जरदारी साहब की वजह से आप सिंध वालों को लगता है कि जो भी जेल जाता है वो जाली बीमार होता है, और नवाज शरीफ को वजह से आपकी हिस्ट्री तो उनकी यही है, मैं आप लोगों से एग्री हूँ। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे जो तशद्दुद है उसकी जो है वो एविडेंस मौजूद है। एविडेंस आज कोर्ट में जो है वो भी पेश कर दी गई है। बीमार होना एक अलहदा बात है, तशद्दुद होना एक अलहदा बात है। बीमार नहीं है वो, उस पर तशद्दुद किया गया है, जो टॉर्चर किया गया है उसकी वजह से उसके प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी की वजह से नहीं है। वो आप जरदारी नवाज शरीफ वाले फेज़ में ना समझें उसको। दूसरी बात यह है कि जो मोबाइल का तो बहाना है, मोबाइल से क्या निकलना होता है? मोबाइल इतनी देर में आपको जो बंदे लोग बाहर होंगे आपका ख्याल होगा कि वो मोबाइल जितनी देर रहेगा तो वो उस मोबाइल में डाटा होगा। अब तक कोई भी थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस रखता हो, चले मैं उन्हीं की साइड की ले लूँ। आप मुझे बताएं, मोबाइल खाली लेके तो नया मोबाइल ले लें मार्केट से, उस पर डाल दें जो मर्जी डाल लें, ये तो अहमकाना बात है ना। नहीं, एक मिनट रुक दीजिए। FIA को कल अदालत में बुलाया गया और अदालत में FIA से पूछा गया कि आपने किस कानून के तहत ये नोटिस जारी किए। FIA ने आगे से कहा जी कि कानून में तो हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, हमारा इख्तियार नहीं है, लेकिन हमें तो चूँकि शहबाज शरीफ और काबीना की इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि आपने नोटिस देना है, तो इसलिए हमने नोटिस दे दिया, कानून तो नहीं है। तो पहली बात यह है कि जो आपने सवाल किया कि एक ही कानून होना चाहिए, इसीलिए इमरान खान FIA के सामने नहीं गए कि एक ही कानून होना चाहिए।
फवाद चौधरी साहब ये दोहरा मेयार नहीं है। एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा करते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान 9 नशिस्तों के इलेक्शन में, क्या ये दोहरा मेयार नहीं है? दोहरा म्यार नहीं है, ये तो नहले पे दहला है। जिस तरीके से उन्होंने जो है वो नशिस्तें खाली कराने की कोशिश की है, हम कह रहे हैं आज भी खाली करा के देख लो। इसको तो जो ये तो शतरंज है, शतरंज की चाल हमारी भी है उनकी भी है। अब तक तो हमने हर जगह उन्हें कुटा है, ये फिर मारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा फवाद भाई, एक सवाल ये है, पीटीआई की तकरीबन 4 साल गवर्नमेंट रही, लेकिन इस दौरान ना पुलिस की कोई इस्लाहात हो सकी, ना अदलिया के हवाले से कोई कानून साजी हुई, जिसका नतीजा 25 मई को आपने भुगता। दूसरा ये है कि अब जो इमरान खान साहब के इंटरव्यूज़ हम सुन रहे हैं और आप लोगों का भी जो नैरेटिव है उससे ये बात सामने आ रही है, जिस तरह पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि वज़ीर आज़म के पास इख्तियार नहीं है, वही बातें यहाँ से साबित हो रही हैं खान साहब के इंटरव्यू से। तो क्या इस नैरेटिव पे आप तीनों जमातें एक उस पर नहीं खड़े हुए कि वज़ीर आज़म इख्तियार के बगैर होता है पाकिस्तान? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तो कम से कम हर रोज़ ये बात कर रहा हूँ कि सियासी जमातों को ये जो अहमकाना बात करते हैं कि मईशत के ऊपर मिसाक होना चाहिए, मईशत पे मिसाक नहीं हुआ करते। जो आपकी एग्रीमेंट्स हैं, जो आपके मिसाक हैं, वो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क पे होते हैं। हमें पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए, इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को मजबूत करने के लिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को मजबूत करने के लिए इस्लाहात लानी होंगी। और अगर हम वो इस्लाहात नहीं लाएंगे तो पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो एक मजाक ही रहेगा। और इसीलिए मैं तो समझता हूँ कि जो सियासी जमातें हैं उनको आपस में फासले कम करने चाहिए। हमें जो आपस में ये जो इलेक्शन, और इसलिए हम कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ सिर्फ इलेक्शन की, अर्ली इलेक्शंस के ऊपर आमादगी जाहिर करें, हम उनके साथ बैठ के इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करने को तैयार हैं। यही बात तो हम बार बार कह रहे हैं। प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि नून लीग और इमरान खान साहब को साथ बिठाएं, तो क्या इमरान खान साहब ने उनको इंडिकेटर दिया था कि इस पर रोल प्ले करें? नहीं, हम देखें इंडिकेटर नहीं, हम तो पब्लिकली कह रहे हैं। असद उमर साहब ने ये कई दफ़ा बात कही है, मैंने कई दफ़ा बात की है, हमारी पार्टी अंदर हमारी कई दफ़ा बात हो चुकी है। अगर हुकूमत अर्ली इलेक्शंस के ऊपर आमादगी जाहिर करेगी, 100% हम हुकूमत के साथ बैठ के फ्रेमवर्क, इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के ऊपर बात करने को तैयार हैं। जब इलेक्शन हो जाएगा, वो कौन सी बातें इमरान खान साहब करेंगे जो पहले कराची वालों से की हो, भाई इमरान खान ने ना की हो, जो बातें थे गवर्नर हाउस ला देंगे, VIP को खत्म कर देंगे, फला पैकेजेस 1100, और क्या नया ऐलान करेंगे कि जिससे कराची वालों को फील हो गया है कोई नई बात की है, कोई वादा ऐसा है जो शायद। लेकिन ये बात, और अगर इलेक्शन में कराची से हार जाते हैं तो आप ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन में 2 नंबरी की है, ये कहेंगे कि अगर हमने वादे नहीं किए थे, इमरान खान ने ज्यादती की, क्योंकि एक रात 4 साल में एक दिन कराची का होता है, वो कराची से इलेक्शन लड़ रहा है, हारने की वजह क्या कहेंगे कि कराची के लोगों को इमरान खान में कराची में आके वकेशंस मनाने का उनका मुतालबा नहीं है। उनका ये मुतालबा नहीं है कि इमरान खान आके हॉक्स बे पे बैठ जाए और वो काम करें। कराची के लोगों का मुतालबा इमरान खान की टीम से ये है कि कराची के मसाइल हल होने चाहिए, और कराची के मसाइल हल होने का सबसे जो बड़ी मुसीबत है वो मुराद अली शाह है। ये वोट जो PTI के लोगों को यहाँ पे मिलना है वो इसलिए मिलना है कि ये 2 वोट है। PTI को वोट दे रहे हैं कि मसाइल का हल करें, और पीपल्स पार्टी और MQM जो अब एक ही हैं। अब तो पीपल्स पार्टी, MQM बेचारी सब्सिडरी है ना पीपल्स पार्टी की। वो मेरा ये ख्याल है एक एडिशनल सेक्रेटरी भी MQM पे, सेंसस की डिमांड भी खत्म हो गई है, उनकी सारी डिमांडें खत्म हो गई हैं MQM वालों की। अब तो वो बेचारे मेरा ख्याल है जम होने जा रहे हैं ये ग्रुप पीपल्स पार्टी में। एक एहतजाज कराची का जो है वो इन दोनों, मैं फिर माजरत से दोनों जमातें नहीं कहूँगा, पीपल्स पार्टी MQM पार्टी जो है, इनके ख़िलाफ़ जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराना है, क्योंकि सारे वसाइल इनके पास है, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इनके पास है, तमाम जो हमारे म्यूनसिपल सर्विसेज हैं वो इनके पास हैं। इनके ख़िलाफ़ एहतजाज पर लगाने के लिए जो है वो कराची के अवाम जो है वो PTI को वोट देगा। और जब तक ये सिस्टम हम पूरी तरह इंशाल्लाह इस बार सिंध में हुकूमत में आएंगे तो कराची के मसाइल जो है टाइम भी बड़ा होगा। मगर दूसरी जानब अमेरिका में लॉबिस्ट जो है उनको आपने मुतहरिक किया है, 25,000 डॉलर जो है महीना उनको देंगे और लॉबिंग करेंगे। तो एक तरफ आपका बयान यह है कि अमेरिका पाकिस्तान दुश्मन है, फिर उधर लॉबिंग भी कर रहे हैं। देखिए मैंने शेख रशीद साहब भी आपके साथ होते थे, वो आजकल नजर नहीं आ रहे। PTI की हुकूमत को उन्होंने तो खूब इस्तेमाल किया, अब वो कहाँ है? शेख साहब तो हर जगह है, हर जगह गए हैं। अगर 2-3 एक बंदा चला गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चला गया। दूसरी बात यह है कि मैंने उन कागज़ों के उर्दू तर्जमे के लिए कहा है
ताकि आप जैसे दोस्तों को भी पता चले कि लॉबिस्ट फर्म में और मीडिया रिलेशनशिप फर्म में क्या फ़र्क होता है। मीडिया रिलेशनशिप का फ़र्क ये है कि हमने अमेरिका में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। अमेरिका के अंदर भी बहुत जो बड़ी पॉपुलेशन है और इंतज़ामिया के अंदर भी लोग ये नहीं अप्रूव करते कि आप दूसरे मुल्कों में जाकर रजीम चेंज करें। हमारा एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और पहली बात तो ये कि PTI USA ने ये रिलेशनशिप फर्म हायर किया और बिल्कुल सही किया। हमारा काम है एज अ पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिकन ऑडियंस तक पहुंचाना। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हम अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम अमेरिका के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात को इस रीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन हम वाशिंगटन को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो तय करे कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म किस मुल्क के दौरे पे जाएगा, किस मुल्क के दौरे पे नहीं जाएगा, हमारा वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, कौन नहीं होगा, नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी, वो पास होगी नहीं होगी। हर मुल्क की रिलेशनशिप्स की लिमिट्स हैं और उन लिमिट्स के अंदर रह के जो है वो बात। फवाद भाई, मेरा सवाल है, मैं बहुत देर का सवाल करना चाह रहा हूँ। एक आर्गुमेंट आया है शहबाज गिल के बयान के बाद कि राशिद मिराज से भी उसके ऑफिसर ने एक बात कही थी जो उसने नहीं मानी, और उसने क्या उसने गद्दारी करी या उसने सही काम किया था, अपने ऑफिसर की नहीं बात मान ली। तो ये, और इसके साथ साथ ये कि आपको भी कोई ऐसा ही टास्क दिया गया कि आप भी ये बात करेंगे इसी किस्म की, और आप अगर वो बात सही कर रहे हो तो फिर आप लोगों की तरफ से ये बात आएगी मुस्तकबिल में, उनकी ऐसी बातें सामने आएंगी? आपको भी कहा गया था कि देखें जी, कोई इस तरह की बात ना हुई है, ना ही हमें फ़ौज के इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर कोई ज़्यादा कमेंट करने के लिए। ये तो दुश्मन चाहता है ना, ये जो सवाल आपने किया ना, ये एक्चुअली ये हिंदुस्तान चाहता है ये डिबेट हो पाकिस्तान में। ये लोग जो हैं जो हमारे दुश्मन हैं वो BLA PTM टाइप क्राउड ये चाहता है कि ये सवाल हो। फ़ौज पाकिस्तान की यकजहती के लिए, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो इसको रिप्रेजेंट करती है, पाकिस्तान कौम की एस्पिरेशंस को, उनकी ख्वाहिशात को। लिहाजा ये दोनों जो हैं वो बहुत पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक शहबाज गिल साहब का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ उनका जो बयान है, जब आप ये जो अयाज सादिक, फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, कैप्टन सफदर, मरियम नवाज़, इनके बयानात को, और ख्वाजा आसफ, इनके बयानात को और शहबाज के बयान को साथ में ला के चलाते हैं तो आपको लगता ये है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हद क्रॉस की है बनिस्बत शहबाज के। हमारा सिर्फ यह है कि आप इक्वल ट्रीटमेंट दें, आप इन सबको उठा के जेल में डाल दें, इन्हें कह जी बिल्कुल इन्होंने जो है वो गलत किया है। इमरान खान साहब के पास पंजाब और KP में वो हुकूमत है और असेंबली तोड़ने का एक इख्तियार उनके पास PTI के पास बतौर चेयरमैन है, वो टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, जिनको नेशनल लीडर कह रहे हैं वो फराग होगी, मलिक रियाज और आरिफ नकवी की हिमायत में सामने आए, तो ये क्या नेशनल लीडर की जिम्मेदारी जिस पर अरबों रुपए पाकिस्तान की चोरी करने का इल्जाम है तीनों को? मुझे नहीं पता उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है। अगर हैं आप इल्ज़ाम, मतलब अगर आपको लगता है कि अमेरिका के जो क्रिमिनल एलिगेशंस हैं आपको ज़्यादा पता है कि वो एक्यूज़ हैं, तो आप उनके खिलाफ पार्टी बन जाएं, यहाँ पे शुरू करा लें। मुझे नहीं पता आरिफ नकवी के ऊपर क्या इल्ज़ाम है। हमें तो ये पता है कि आरिफ नकवी जो है वो पाकिस्तान का स्टार था 2012 तक। अगर किसी ने इंटरनेशनल सतह के ऊपर कोई फाइनेंस में नाम बनाया था तो आरिफ नकवी था। और अगर आपको लगता है कि अमेरिका बरतानिया की तरफ से सिर्फ इल्ज़ाम लगाना इतना एहतराम का बायस है कि आप जैसे लोग कहें कि वो क्रिमिनल है, तो फिर आप यहाँ पे पार्टी बन जाए। KP और पंजाब असम्बली, जिस तरह मैंने आगे अर्ज़ किया, देखिए ये शतरंज का खेल है, इसमें हम KP और पंजाब असम्बली किसी की मासूम सी ख्वाहिश पे नहीं तोड़ सकते। हमारे साथ बैठेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रीडू करेंगे, तो फिर हम इलेक्शन इसको असम्बली तोड़ने के, और सिंध असम्बली को तोड़ेंगे। सिंध असम्बली को तोड़ें, इलेक्शन कमीशन को रीडू करें, हम पंजाब और KP असम्बली तोड़ने का सोच सकते हैं। और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ असम्बली का इलेक्शन इस्लामाबाद का होगा। अच्छा, ये पंजाब और KP में हमारी हुकूमत होगी और सिर्फ इस्लामाबाद का इलेक्शन। अच्छा, अभी ये असम्बली के अंदर पेश किया जा रहा है कि 5 साल तक जो है वो नाहिल होनी चाहिए, ताहियात नहीं होनी चाहिए। और नवाज शरीफ साहब की वापसी का जो है वो भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, क्या वो उसके लिए आप कोर्ट में जाएंगे कि ये इनको गिरफ्तार किया जाए? नहीं, हमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट में तो वो पहले ही कन्विक्टेड है। नवाज शरीफ के ऊपर हमारा वापसी पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के शहरी हैं, वो कहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं ब्रिटिश सिटीज़न हैं, उन पर अप्लाई नहीं होता लॉ, लेकिन जितना पैसा बच्चे भी माशाल्लाह ले गए हैं उनको भी वापस लाना ज़रूरी है। लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान आने की हद तक तो उनका राइट है, वो तो उनको वापस आना चाहिए। हम तो बल्कि कह के थक गए हैं कि आपने लंदन में कोई रेस्टोरेंट नहीं छोड़ा जहाँ पे आपने जाके रिव्यू नहीं लिख लिया। अब आप कराची के, लाहौर के ज़रा आए, उधर देखें, और यहाँ पे आके उन्होंने करना क्या है? उन्होंने जेल जाना, अडियाला जेल वो अपनी मर्ज़ी से गए हुए थे।
सॉरी कोट लखपत, अडयाला में थे, वहाँ से कोट लखपत ट्रांसफ़र हुए। कोट लखपत जेल में उन्होंने जाना है और अदालत में अपनी जो अपील है वो फाइल करनी है। अदालती प्रोसेस के ज़रिए वो आ सकते हैं बाहर, किसी डील के ज़रिए हम बाहर नहीं आने देंगे। ये बड़ी सिंपल बात है। अदालती प्रोसेस लें, वहाँ पे जाएं और अपना मामला जो है अदालत के साथ निपटें। और इसी तरह से मरियम नवाज़ की अपील का फैसला होना चाहिए। बोथ शुड गो बिहाइंड। इमरान खान होगी बात। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले आपने मरियम नवाज, अयाज सादिक सब के हवाले दिए। एक शख्स आपके दौर में गिरफ्तार हुआ जिसका नाम था अली वजीर। क्या अली वजीर ने इससे सब बात की थी जो उनको गिरफ्तार? अली वजीर ने भी बहुत सख्त बातें की।